आचार्य अनूप कुमार पांडे, क्लास 7 के लिए मैं सोशल साइंस चैप्टर 2 हिस्ट्री का इस संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी भैया बहन ये जान लें कि क्लास 7 में इस बार सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में है। जो भैया 6 में पढ़ चुके हैं उनके लिए 7 में सुविधा होगी, इसलिए 7 में भी सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में लागू करने का प्रयास किया गया है, ताकि हमारे भैया बहन आगे चलकर उन्हें सोशल साइंस इंग्लिश में पढ़ने में सुविधा हो और अन्य विषयों में भी उन्हें मदद मिले। इसलिए हमारे प्राचार्य महोदय सोशल साइंस को क्रमशः इंग्लिश मीडियम में लागू करने का प्रयास किए हैं। आज जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ वो चैप्टर है किंग, न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राज्य और राजा। उससे रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, याद करने योग्य कुछ पारिभाषिक शब्द है, जैसे ट्री पार्टी वर्ड का हिंदी में होता है त्रिपक्षीय। इसके बाद है क्लान यानी कबीला, जौहर, फेडरेशन। इस तरह से कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनके बारे में भी जानना आवश्यक है। I am start to topics, and first topics in this chapter, rise of a small kingdom in the northern India। इस नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ इंडिया was marked by confusion and disorder after the death of हर्षवर्धन in AD 648। यानी उत्तर भारत में 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बहुत ही उलझन और असमंजस की स्थिति थी। इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल पावर, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे राज्य विभाजित हो गए। These kingdoms were governed by Rajput rulers. Some of these rulers had been feudatories, अर्थात सामंतवादी व्यवस्था, of the exciting kings। They used to fight for their overlord and supplied soldiers when the king went to war। Later, some of these feudal lords gained richness and strength। They became independent rulers। ये जो बतलाया गया कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई कि छोटे छोटे राज्यों में
राज्य विभक्त हो गए और अधिकांश में राजपूत शासकों का शासन था। देन द ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी हिंदी में कि कन्नौज एक बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था जिसको पाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों में स्ट्रगल हुआ। द पाल्स, द प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। पाल्स of Bengal, the Pratihars of Gujarat and Rashtrakoot and the Rajasthan. The Pals, the Pratihar and the Rashtrakoot made Kannauj the test of their politics power. The struggle for control over Kannauj came to be known as the Tree Party struggle, that is, three-sided struggle. It lasted for more than a century from about AD 6 AD 780 AD and 910, अर्थात कन्नौज को पाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में स्ट्रगल हुआ। देन राष्ट्रकूट्स, द राष्ट्रकूट्स इन द दक्कन वेर द feudatory chief of the Chalukya Karnataka. In AD 753, Danti Durg defeated the Chalukya and founded the Rashtrakoot dynasty. Then Pals of Bengal and Bihar. The Pal kingdom came into being in about AD 750. This dynasty was founded by Gopal. He was succeeded by Dharampal AD 780 to 815. Then Gurjar Pratihar king Nagbhat set up the Gurjar Pratihar dynasty by defeating the Arabs in AD 738. King Bhoj AD 836 AD 885 was the greatest ruler of this dynasty. His empire extended from Bihar in the east of Kathiawar in the west. Then some imported words. Prasasti means a prasasti is a piece of writing that praises someone highly. A prasasti composed by a learned Brahmin speaks of the achievements of King Nagbhat. It says that he won victory over the rulers of Kannauj, Bengal, Gujarat, Malwa and many other kings of northern India. Some important topics and 2 minutes wait. Chahmans or Chauhans. Chahmans had been the feudatory chiefs of the Pratihars
the Parmars, and the Chalukya. There were many branches of Chamans who ruled from different centers like Jela, Jalore, Saipur, Jodhpur, Dhaulpur, and Ajmer. One of the famous Chauhan rulers was Prithviraj, also known as Raj Pithoda. Chandbardai, in his famous work Prithviraj Raso, described Prithviraj's military exploits. He ruled over vast territories extending from Ajmer to Delhi. In AD 1191, he defeated Muhammad Ghori in the Battle of Tarain near Bhatinda, but he was defeated and killed at the Second Battle of Tarain in AD 1192. This battle was landmark in the history of India. It laid the foundation of Turkish rule in northern India. मैं इस संबंध में संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि पृथ्वीराज चौहान का पराजित होना भारत के इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था कि 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। लेकिन भारत के राजा अपनी दयालुता सहिष्णुता के कारण उनको छोड़ दिए। ये भारतीय राजा की बहुत बड़ी भूल थी, जो कि बाद में हमें पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ा। जैसा कि इतिहास बतलाता है कि जस्ट एक वर्ष के बाद ही 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। शेष सम टॉपिक्स के बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। बस ये करो।